Good morning, friends. So let us continue our series for the tricks and hacks for the UPSC CSC prelims. Moving on to the next trick that says that name of parent organization, department, regulatory body, or ministry is generally wrong. Now, why I'm saying so? Let us see through the questions. The first question is with reference to T board in India. Consider the following statement. पहला statement है T body is a statutory body. ठीक है अगर किसी को अगर ये पता हो कि टी बोर्ड किसके अंदर इस्टेब्लिश हुआ है सो दिस इज़ वेरी बेसिक लाइक इट इस्टेब्लिश्ड अंडर टी एक्ट 1953 एक्ट के तहत इस्टेब्लिश होने वाली बॉडी अगर है तो स्टैट्यूटरी बॉडी होगी दिस इज known to everyone. Now look at the second statement. It is a regulatory body attached to Ministry of Farmer Agriculture and Farmer Welfare. Now following the rule, I would say this statement is wrong. Now if I eliminate the second statement, I have three options A, C and D. Now T board head office situated in Bangalore and the board overseas office at Dubai and Moscow. Now if you look at the tree growing area of India, so mostly it's in Assam, it's in West Bengal, Darjeeling area, and here in Tamil Nadu and Kerala, few parts of Kerala. Now there is no point in having the head office situated at Bangalore. Now this is newly grown area. Traditionally it has been grown in the Assam and the West Bengal region, hilly areas of West Bengal. So obviously headquarter would be somewhere close to, because India export tea to the rest of the world. So headquarter has to be close to the tea growing area, and the headquarter is in Kolkata. So on that basis, if I mark the statement as incorrect, 3 3, I would reach the option that is D. Let us see 76 question that says that United Nations Credential Committee consider the following statement. The committee set up by UNSC. Now set up by, now this following the rule I would mark it incorrect. It traditionally meets in March, June and September every year. Now this is very narrow and very specific. It has given the months that it traditionally meets in March, June, September every year. ऐसा है नहीं, क्योंकि कोई फिक्स नहीं है कि आप इसी जो आपकी क्रेडेंशियल कमेटी है इसी महीने में मीट करेगी. वो मीट करने को तो कभी मीट कर सकती है जब उसके पास एजेंडा हो. सो इफ आई मार्क द स्टेटमेंट इनकरेक्ट and let us see the third statement that says there it assesses the credential of all the UN members before submitting a report to the यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फॉर अप्रूवल. सो अगर इसको मैं सही मानता हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि आप आंसर देखोगे ऐसा फ्रेम हुआ है, सो आंसर ए वुड बी करेक्ट. एक और चीज़ है, अगर आप स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 को देखोगे ये म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, क्योंकि अगर यूएनएससी के द्वारा सेटअप हुआ है तो इट शुड सबमिट रिपोर्ट टू द यूएनएससी, जबकि थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये जो क्रेडेंशियल रिपोर्ट है वो किसको सबमिट करता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को. सो इधर 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट और 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो yeah, so that is one point. Look at the question number 74. Indian Sanitation Coalition is again funded by, this funded by, set up by, I would assume it's incorrect. National Institute of Urban Affairs, again it's apex body under Ministry of Housing and Urban Affairs, again it's incorrect. So which option? D. यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि यूपीएससी क्या करता है कि कोई भी लेट्स से एनजीओ है या फिर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको ऐसे फ्रेम करता है किसी स्टेटमेंट में कि जैसे ये दे आर सेट अप बाय सम मिनिस्ट्री और सेट अप बाय और रेगुलेटेड बाय सम मिनिस्ट्री और चेयर्ड बाय सम मिनिस्टर, समथिंग लाइक दैट. सो दिस इज अ ट्रैप ऑफ यूपीएससी. Here also Bank Board Bureau,
the statement following, which of the following statement are correct? Again, the governor of RBI is the chairman. Now this is very TQL position. किसी भी स्टेटमेंट को अगर हमें रॉन्ग बनाना हो, इनकरेक्ट बनाना हो, तो यहाँ पे हम ट्विक कर सकते हैं. अगेन, so I would say statement 1 is incorrect. We recommend the selection of, obviously, ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, and helps the public sector bank in developing strategy and capital raising plans. This is also correct. So according to that, if I eliminate second, I would reach the answer, that is 2 and 3. Water credit, something related to the credit, it means something related to the microfinance or finance tool. It puts microfinance tool to work in the water and sanitation sector. सही है, जो कि नाम से भी जा रहा है, water credit. It's a global initiative launched under the aegis of World Health Organization and World Bank. Again, I would mark it incorrect. If I mark statement second, I would reach the answer, that is 1 and 3. We don't want to read statement 3. 56th question, that says the Global Ocean Commission grants license. Again, I would mark it incorrect. So अगर पहले को मैं इनकरेक्ट करता हूँ तो आंसर क्या मिलेगा? 2 and 3. और जो सीबेड एक्सप्लोरेशन का जो राइट है, दैट इज बीइंग गिवन बाय इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी. Definition of this, okay. For the first time, biogas have been given habitat rights, okay. Now again, which ministry decides? I do not know, but following the rule, I would say the name of ministry is wrong, and in that case, if I eliminate 3, I would reach the answer, that is 1. और अगर किसी को पता होगा, like फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये इम्प्लीमेंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. और ये जो हैबिटेट राइट्स हैं वो भी यही प्रोवाइड करता है. एफआरए के अंदर 3 तरह के राइट्स होते हैं. वन इज लैंड राइट्स, अदर इज यूज राइट्स, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की यूज के बारे में, एंड थर्ड इज कम्युनिटी राइट्स related to conservation and preservation. So land rights is basically the habitat rights. Again, look at this 63rd question. It's talking about the GM mustard. Look at the third statement, being developed jointly. Again, I would mark it incorrect. और अगर मैं 3 को इनकरेक्ट करता हूँ, you don't have to read the other 2 statement. Option B is correct. Let us move to the next rule, that says that how the answers can be derived from keywords in the question. For example, polar code. पोलर एरियाज के बारे में किसी कोड की बात कर रहा होगा ये. This is how basic I would draw inference from it. Now let us first see the statement 1, that says that it's an international code of safety for the ships operating in polar areas. Okay, it's an agreement of the countries around the North Pole regarding the demarcation of the territories in the polar region. A set of norms to be followed by the countries whose scientists undertake research study in North Pole and South Pole. It's a trade and security agreement. Now अगर यहाँ पे देखेंगे सबसे जेनरिक स्टेटमेंट जो है वो पहला है, क्योंकि यहाँ पे देखो स्पेसिफिक्स काफ़ी दिए हैं. नॉर्थ पोल, डिमार्केशन ऑफ टेरिटरीज, यहाँ भी साइंटिस्ट अंडरटेक इन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल देयर रिसर्च स्टडीज. मोर ओवर आप यहाँ पे देखो कोड यहाँ पे भी आया हुआ, कोड इस स्टेटमेंट में भी है. सो फॉलोइंग दिस आई वुड से ऑप्शन ए इज करेक्ट. Now see the 69th question, aerial metagenomics, something related to the air. Metagenomics, something related to the DNA or gene. पहला देखते हैं, collecting DNA samples from air in habitat at one go. ये बहुत ही suitable है. Undertaking the genetic makeup of avian species of a habitat. No. Using airborne devices to collect blood samples. Sending drones to inaccessible areas to collect plant and animal samples. Now देखो इसमें samples की बात किया है, DNA samples की नहीं बात कर रहा है. इसमें भी blood samples की बात कर रहा है, no DNA samples. यहाँ भी genetic में यहाँ कहीं DNA इस्तेमाल नहीं हुआ है वर्ड.
Now the most closely is this collecting DNA samples. So I would say answer 1 is correct. Similarly, this microsatellite DNA something related to the evolutionary study हम करते हैं. उस हिसाब से अगर देखा जाए, द फर्स्ट स्टेटमेंट स्टडिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द वेरियस स्पीसीज ऑफ फौना, बहुत ही कॉमन है बेसिकली है. अगेन यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक हो जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट, सिमुलेटिंग स्टेम सेल्स, अगेन क्लोनल प्रोपगेशन, एंड थर्ड एफिकेसी ऑफ ड्रग्स, कंडक्टिंग सीरीज ऑफ ड्रग ट्रायल्स इन अ पॉपुलेशन. सो ये तीनों बहुत स्पेसिफिक स्टेटमेंट है. सो हमेशा इन क्वेश्चंस में ये देखना कि सबसे जेनरिक, आपको अगर नहीं पता तो सबसे जेनरिक स्टेटमेंट में जाइए और जो आपके क्वेश्चन के वर्ड हैं उनको फ्रेम कीजिए, उनसे इन्फ्रेंस ड्रॉ कीजिए, और जो मोस्ट लाइकली मैच हो रहे हैं जो स्टेटमेंट वही सही होंगे. दैट इज द फर्स्ट वन. अगेन हियर ऑल्सो ट्रिक्लोसान. So SAN basically sounds like sanitary or it's something similar to the sanitary. उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, टॉयलेटरी. अगेन इंड आर्क. So इंड आर्क समथिंग रिलेटेड टू इंडिया और इट्स इंडिजिनस, एंड आर्क मीन्स आर्कटिक. तो यहाँ पे देखोगे तो अंटार्कटिक रीजन है, यहाँ पे देखो तो ऐसा कुछ बात नहीं किया, इंडियन ओशन रिम ओशन की बात किया है, यहाँ भी इंडियन डिफेंस के बारे में बात कर रहा है. यहाँ पे जो इससे मैच कर रहा है वो इस स्टेटमेंट है अंडर आर्टिक रीजन ऑब्जर्वेटरी. सो उस हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट. सो आपको कीवर्ड्स पिकअप करना है क्वेश्चन से और उसको तोड़ के उसको समझ के यू हैव टू रीच टू द आंसर. क्यूबिट, क्वांटम बिट. Q stands for quantum bit. So basically ऑप्शन बी अगर इसका देखेंगे, और वैसे भी ये बहुत बेसिक है, अगर आप साइंस एंड टेक पढ़े होंगे, दिस इज वेरी बेसिक. क्यूबिट. Look at 71st question, or let us move forward to 76. It says that which of the following is a reason why astronomical distances are measured in light years. So distance measure करने के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है, क्यों हम लाइट ईयर में मेजर करते हैं, क्या रीज़न हो सकता है इसका. सो आपको पता है डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम. सो अगर कांस्टेंट डिस्टेंस मेजर करना है, टाइम वेरी नहीं कर सकता है, तो आपको स्पीड भी कांस्टेंट रहना पड़ेगा. अगर स्पीड वेरिएबल है तो डिस्टेंस आप एक्यूरेटली डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे, अगर लेट्स से स्पीड वेरिएबल है तो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे आपको डिफरेंट डिस्टेंस मिलेगा. स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए, सो दैट फॉर सेम टाइम इंटरवल, for that you get the same distance, or you get the accurate distance, or you get the same. So option D. अगर ऑप्शन सी की बात करें तो इसमें अगर आप देखोगे इसमें आंसर डी है. ऑप्शन अगर सी की बात करोगे तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये भी गलत है, क्योंकि आप ब्लैक होल में देखोगे लाइट बेंड हो जाता है और लाइट यहाँ से वापस आ भी नहीं पाता है. ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडी डू नॉट चेंजेस, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि ग्रेविटी डिपेंड करता है मास पे. मास वेरी हो सकता है बेसिकली अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, समथिंग लाइक दैट. अगर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा हो, न्यूक्लियर फिजन हो रहा हो. डिस्टेंस अमंग द स्टेलर बॉडी डू नॉट चेंज, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि मान लो कुछ स्टेलर बॉडीज रोटेट कर रहे हो, रिवोल्यूट कर रहे हो, तो डिस्टेंस ऑल्सो. सो इसमें मोस्ट जो एक्यूरेट है और जो मोस्ट जो क्वेश्चन के करीब है, दैट इज द रीजन डी, विच इज स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम. In context of beta, again we write beta like this. It's a alpha numeric value, and then alpha, and then delta. So this has to be some numeric value. In that case, you would mark option D as is correct. Again here 71st, which of the following compiles the information of industrial dispute, closure, retrenchment and layoff in the factories employing workers, Central Statistical Office. ये कुछ मतलब इसके क्लोज नहीं है लेबर्स के. CSO बेसिकली क्या करता है आपका, ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग को कैलकुलेट करता है, कोऑर्डिनेशन करता है स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज़ का, या फिर मेंटेनेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स. तो स्टैटिक्स में बेसिकली ये डील करता है, एंड दिस स्टैटिक्स नॉट वेरी स्पेसिफिक टू द लेबर. अगेन DPIIT ये भी डील करता है इंडस्ट्रीज से, प्रमोशन ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, FDI हो गया, स्टार्टअप्स हो गया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी होगा. द थर्ड वन, लुक एट द स्टेटमेंट सी, दैट सेज लेबर ब्यूरो, व्हिच इज वेरी क्लोज. सो आई वुड मार्क सी एज करेक्ट.
अगर डी की भी देखोगे टेक्निकल मैन पावर, दिस इज वेरी स्पेसिफिक, नॉट अबाउट द अनस्किल्ड, इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट द अनस्किल्ड मैन पावर, इट्स टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल मैन पावर. So I would go with the option C, labor bureau. Let us this look at 21st question. The organism cicada, frog hopper, pond skater. Now this frog hopper, hop means kudna, something that hops from one place to other place. और इससे रिलेटेड आप क्या एक जो टर्म आता है आपके अंदर, ग्रॉस होपर, अगेन वही है जो ग्रास पे हॉप कर रहा हो. और ये ग्रास होपर है क्या? दिस इज इंसेक्ट. सो आई वुड से these organisms are also insects. Recently, the term pumped storage hydropower, talking about the energy, talking about the storage. सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो इसकी बात कर रहा है. सो आप देख रहे हो कैसे मैंने कीवर्ड क्वेश्चन को उठा के कैसे मैं आंसर्स को पहचान रहा हूँ. मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स, अगेन कोई एक मेम्ब्रेन है, बायोरिएक्टर्स हैं यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो मेम्ब्रेन हम जनरली कहाँ यूज़ करते हैं? द मोस्ट कॉमन थिंग इज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी. वैक्सीन प्रोडक्शन में हो सकता है बट इट्स नॉट कॉमन. ड्रग डिलीवरी में भी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में भी, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज में. अगेन कोलेटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोलेटरल बोरोइंग. कोलेटरल है आपके पास, लेट्स से इट कैन बी ट्रेजरी बिल्स, इट कैन बी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. कोलेटरल हम रखते हैं, लोन पाते हैं, we get the loan and from the financial institutions, from the banks. So ये this financial institutions हो गए, banks हो गए, ये किसके पार्ट है? they are part of money market. So कैसे मैं कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए, कैसे मैं उसको एनालाइज करते हुए आंसर तक पहुंच रहा हूँ, दिस इज important. R2 code of practices. So R2, what I had done is I had assumed that R2 has to be something like RR. So now look at the statement and where two R's are there. Now here responsible is there, recycling is there. Here there is no R, here there is no R. I mean words starting with R. Here there is nothing like that. So option A is correct. Now look at this. This is very important. I mean very interesting. 43rd question. The experiment will imply a trio of spacecraft flying in the formation in the shape of a equilateral triangle that had sides 1 million kilometer long with lasers shining between the craft. Now look at this word lasers. अगर हम ऑप्शन सी और डी को देखेंगे, यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है लीजा. तो एल मैं ये अज्यूम किया कि एल स्टैंड्स फॉर लेजर. ओके, नाउ हमें चूज करना था सी और डी में से. वन इज पाथफाइंडर, वन इज इवॉल्व लीजा. नाउ दिस इज एन एक्सपेरिमेंट. ओके, सो लेट्स से इफ आई गो विद डी, नाम से अगर देखोगे तो इवॉल्व लीजा है, मतलब लीजा का कुछ 2.0 वर्जन है. ठीक है, और ये लगता है लीजा का 1.0 वर्जन है. तो 2.0 में मोस्टली जो 1.0 में रहेगा वो चीज़ें रहेंगी. तो सबसे सेफ क्या है इसमें मार्क करने को? इवॉल्व लीजा, क्योंकि जो इसमें होगा ऑब्वियसली इसमें भी होगा. सो ऑप्शन डी. Now let us move on to the next rule that says that you have to choose generic statement over specific statement, जो most generic हो. जैसे मान लो कि क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के बारे में बात कर रहा है, ये है क्या बेसिकली? तो अगर यहाँ पे देखोगे ऑप्शन बी में, दिस इज ऑल्सो वेरी स्पेसिफिक. IPCC के बारे में बात कर रहा है, UNFCCC के बारे में ये बात कर रहा है, ये बात कर रहा है फाइनेंस बाय UNF, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के बारे में, वर्ल्ड बैंक से फंड. सो बेसिकली क्या है, बहुत ही स्पेसिफिक होगा. द मोस्ट generic is this database created by a coalition of research organization. Again मैंने यहाँ पे पहले भी बोला था कि यूपीएससी की ये आदत है, ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को, एनजीओस को ये ऑफन ऐसे फ्रेम करता है ताकि ये किसी इंपॉर्टेंट बॉडी या किसी मिनिस्ट्री या किसी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंपॉर्टेंट यूनियन इंस्टीट्यूशंस के अंदर सेटअप हुई हैं, जस्ट टू क्रिएट अ ट्रैप फॉर द एस्पिरेंट्स. सो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है. अगेन अगर हम ऐसे भी देखें, आईपी आप इन्वायरमेंट पढ़ते हो, IPCC के बारे में पढ़ते हो, UNFCCC के बारे में पढ़ते हो, यूएनएफ के बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ते हो, इतना पढ़ते हो कि अगर ऐसा कुछ होगा तो जरूर आपने स्टडी किया होगा.
अगर आपने स्टडी नहीं किया हुआ है, ट्रस्ट योर नॉलेज बेस, आपने स्टडी नहीं किया हुआ है तो ये उसके अंदर हो ही नहीं सकता। Look at this statement. It says that Gucci sometimes mentioned in the news. Consider the following instance of fungus. Okay. Look at second and third statement. जो दूसरा है वो बहुत जनरिक है, कह रहा है some forest हिमालयन में ग्रो कर रहा होगा, हिमालयन फॉरेस्ट एरिया में। दूसरा कह रहा है कि कमर्शियली कल्टिवेटेड, स्पेसिफिक हो गया, इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो अगर दूसरे और तीसरे में से मेरे को चूज करना हो, चूज टू, एंड ऑप्शन आंसर इज 1 and 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अगेन अगर आप देखेंगे बी स्टेटमेंट को, अगर आप देखेंगे फर्स्ट हाफ मतलब 1800 से 1850 मशीन्स वे इंट्रोड्यूस इन इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, थोड़ा स्पेसिफिक है ये। रेलवे लाइन्स वे लेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज। अगर आपने अगर मॉडर्न हिस्ट्री की थोड़ी भी नॉलेज होगी, आपको पता है कि फर्स्ट ट्रेन रैन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने इन 1853। सो ये हो ही नहीं सकता है। हैवी ड्यूटीज, इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स। सो अगर आप देखेंगे ऑप्शन ए इज वेरी and most likely is close to the what is been asked in the question, handicrafts। और obviously अगर आप फर्स्ट हाफ में देखोगे, ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी हो गया, इंडस्ट्रियल कंपटीशन की वजह से इंडियन हैंडक्राफ्ट्स र्यून होगा। इंडिया से जो प्रोडक्ट जाते हैं उन पर हैवी टैरिफ लगता था, तो बाहर के मार्केट में वो एक्सपेंसिव हो जाते थे, वहाँ के भी मार्केट उन्होंने लूज कर दिया। और क्या हुआ, जब बाहर के प्रोडक्ट्स आते थे, ब्रिटिश इंग्लैंड के जो प्रोडक्ट्स आते थे इंडिया में, उन पे जीरो टैरिफ लगता था, तो वो इंडिया के मार्केट में सस्ते हो जाते थे। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को आउट कम्पीट कर दिया। मोर ओवर रेलवेज जब आया तो वो विलेजेस में, इंटीरियर्स में पहुँचने लगा और मार्केट को कैप्चर करने लगा। अगेन इसमें वही देखेंगे हम, चूज मोर जनरिक ओवर स्पेसिफिक। नाउ सी दीज टू क्वेश्चंस। यूपीएससी का क्या होता है बेसिकली, कि टू स्टेटमेंट्स हैं, उनको क्या करता है, कभी कभी उनके डेटा एक्सचेंज कर देता है, कभी डिफिनेशन एक्सचेंज कर देता है, कभी उनके मीनिंग एक्सचेंज कर देगा, स्वैप कर देता है। सो ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे, ये क्वेश्चन आई थिंक सीएससी 2022 में पूछा गया था या 2023 में, दिस इज 2025। मेरे को ये पता था कि जो ट्रॉफी ऑफ विनिंग टीम है बेंचिक कप, और यहाँ पे जो ट्रॉफी ऑफ विनिंग वुमेन की है हैमिल्टन लसन, इसको इसने क्या किया था, स्वैप कर दिया था। एग्जैक्टली सेम लॉजिक को मैंने इसमें इस्तेमाल किया। इसने स्कोर बताया हुआ है इंडियन वुमेन का, इंडियन मैन का, ये भी स्वैप है। तो अगर मैंने दोनों को इनकरेक्ट माना तो ऑप्शन एक ही आया, दैट इज ओनली वन। यहाँ भी देखोगे हाई क्लाउड्स, लो क्लाउड्स, दोनों के फंक्शंस को उसने क्या किया, स्वैप कर दिया है। यहाँ भी ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के डेफिनेशंस को स्वैप कर दिया। तो पहला दूसरा अगर गलत है, और तीसरा चौथा अगर मैं देखूंगा, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, अगर नाम से भी जाओगे ऑगमेंटेड रियलिटी, कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है और उसको आप और ऑगमेंट कर रहे हो, to be present in the world and improves the experience using the camera। okay, virtual reality में completely आप different environment create कर रहे हो, complete immersion experience। so 3 and 4 are correct। see this augmented reality, virtual reality, these things are very common if you study science and tech। now again ये भी एक इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूटी ऑफ थीम्स, टॉपिक एंड वर्ड्स इन द क्वेश्चन पेपर। लेट्स से आप एग्जामिनर हो, आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, वहाँ से आप क्वेश्चन बना रहे हो, तो आपको लेट्स से वो टॉपिक इतना पसंद आ गया कि आप उससे 2-3 क्वेश्चन बनाओगे, और ऐसा होता है कि आप लगातार बनाते हो। जैसे कि लेट्स से यहाँ पे बात करा वर्ल्ड कोबाल्ट के बारे में, और यहाँ पे बात करा कॉन्गो के बारे में, तो ऑब्वियसली इसका आंसर अगर यहाँ पे कॉन्गो है, क्योंकि आप इमेजिन करो ये 7वां 8वां क्वेश्चन है, वो कॉन्गो के बारे में पढ़ रहा होगा लेट्स से, एंड वहाँ पे उसको क्या मिला, वहाँ पे इसको मिला कि वर्ल्ड कोबाल्ट का लार्जेस्ट वहाँ पे रिजर्व है या लार्जेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है ये। और अगेन उसका मन हुआ, कहा कि चलो ये पूछ लेते हैं कि कॉन्गो बेसिन किससे किससे सराउंडेड है। सो ये कंटिन्यूटी आप देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ पे क्या है, साइट्स है। देखिए कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चन 81-82। सो साइट्स हैं ऊपर, अगर आप देखेंगे तो इन्होंने नाम पूछा है, दे आर रिफ्लेक्ट एसोसिएटेड विथ आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन साइट्स, आंसर वही है। यहाँ भी अगर आप देखोगे क्रोमोसोम्स के बारे में बात कर रहा है, डीएनए के बारे में बात कर रहा है, एंड समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द इवोल्यूशन। ओ जस्ट अ मिनट, यस, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द इवोल्यूशन, क्योंकि सेगमेंट डीएनए की बात कर रहा है, यहाँ भी डीएनए की बात कर रहा है, इवोल्यूशन, डेनिसोवान।
इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, ये देखो ये लाइकली टर्म्स हैं, ये मैचिंग टर्म्स हैं, तो आपको ऐसे दिमाग में रखना है। मैंडेटरी और रिकमेंडेटरी वर्ड मोस्टली इनकरेक्ट होते हैं, खासकर इंटरनेशनल ट्रीटीज में। अगर हम कहते हैं कि मैंडेटरी बाइंडिंग है, रिकमेंडेटरी है, तो अगर ऐसे मैं फॉलो करूं, यहाँ पे भी देखोगे मैंडेटरी वर्ड आया हुआ है। इफ आई मार्क दिस एज इनकरेक्ट, आई वुड से ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ भी देखो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहा है। सो यहाँ पे बोल रहा है ये बेसिकली कि यहाँ पे इस मैंडेटरी, इसको मैं गलत कर देता हूँ। नाउ वेस्ट जनरेशन हैड टू सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 5 कैटेगरीज। नाउ आगे चल के मैं एक और रूल बताऊंगा। ये जो 5 है, ये जो वर्ड्स, जो नंबर्स होते हैं उनको वर्ड्स में अगर यूपीएससी लिखता है, 6 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, मोस्टली इनकरेक्ट होते हैं। अगर उस बेसिस में मैं जाऊँ तो इसको इनकरेक्ट करूंगा। रूल्स आर applicable टू द नोटिफाइड अर्बन लोकल बॉडीज, नोटिफाइड टाउन्स एंड ऑल इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स ओनली। अगेन दिस इज स्पेसिफिक। क्यों भाई, क्यों हम लोकल बॉडीज, नोटिफाइड टाउनशिप्स एंड इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स के अलावा और कहीं नहीं कर सकते हैं क्या? रूरल एरियाज में भी कर सकते हैं, क्यों? नॉर्मली अगर आप स्वच्छ भारत मिशन के बारे में पढ़ोगे, ग्रामीण, वहाँ भी हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं। सो ओनली की वजह से आई वुड एलिमिनेट दिस। सो आउट इज द आंसर, दैट इज सी। Now moving on to the next one, that says that मान लो अगर कोई जेनरिक है, बेसिकली जनरल है, पॉजिटिव उससे लॉजिक आ रही है या पॉजिटिवली साउंड कर रहा है, मे एंड कॉ, ऑट, कुड, शुड, समथिंग लाइक दैट, ये मोस्टली करेक्ट होते हैं। जैसे बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स, बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सर्फेसेज, बायोफिल्म्स कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। सो मोस्टली करेक्ट होते हैं। नाउ विस्टी के बारे में बात करा, फोर्स लेबर, इसमें से कौन सा करेक्ट है? सो अगर आप देखोगे एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबर, लेट्स एनालाइज ऑप्शन डी। ये बहुत स्पेसिफिक है। इंटाइटल्ड टू वीकली वेजेस, बहुत स्पेसिफिक है। टोटली एब्सेंट, ये एक्सट्रीम बना दे रहा है। ये बहुत ही जेनिक स्टेटमेंट है। कंसिडर एज अ सोर्स, वन ऑफ द सोर्स ऑफ फॉर द इनकम ऑफ द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। एल्डेस्ट सन, दिस इज ऑल्सो, क्योंकि ये सारे वर्ड्स यूज करके आपको स्पेसिफिक कर दे रहा है। न्यूमेरिकल वैल्यूज, ये बहुत ही कॉमन है, जो हम बोलते हैं डेटा हो गया या फिर कुछ हो गया। जो पहले मैं बता रहा था कि डायरेक्शन अगर हो गया नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, मोस्टली गलत होता है। फिगर्स भी, और स्पेशली व्हेन यू आर रिटन इन द फिगर्स, नंबर्स आर रिटन इन द फिगर्स लाइक 5 6 समथिंग लाइक दैट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 टाइम्स है, 2/3 है, समथिंग लाइक दैट। सो मोस्टली इनकरेक्ट होते हैं। यहाँ पे भी देखोगे न्यूट्रलिटी बाई 2040, अगर दूसरा है तो ऑप्शन ए इज दिस, सी इज करेक्ट। और इसको एक इसमें एलिमिनेट कर दोगे तो आंसर मिल जाएगा। आधार कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3, देखो यहाँ पे आया ना 3 5 6 ऐसे समथिंग, कुछ जो नंबर्स होते हैं और उसको वर्ड्स में लिखा मोस्टली इनकरेक्ट होता है। मैंडेटरी वर्ड है, अगर मैं इसको भी मारूँ इनकरेक्ट, नो, नाउ लुक एट दिस, देयर आर 2 मैंडेटरी। अब इसमें आपको देखना है कि विच वन इज द करेक्ट। ना पहला अगर देखोगे, मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट्स आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दिस इज करेक्ट। व्हाई? बिकॉज कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया से जो भी बेनिफिशरी, यहाँ के जो फंड प्रोवाइड होते हैं, जो बेनिफिशरी स्कीम्स को फंड करते हैं, और बेनिफिशरीज को फंड करने के लिए जो बेनिफिशरीज होते हैं, तो उसमें अगर आपको एरर को अवॉइड करना है, तो उस केस में क्या करते हो, आप आधार मांगते हो ताकि सबको मिले, कोई डुप्लीकेशन ना हो। बट यहाँ पे कह सकते हो कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इंश्योरेंस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आधार की ज़रूरत हो। तो अगर इसमें अगर देखोगे 3 को मैं इनकरेक्ट मानता हूँ और पहला इनकरेक्ट है, सो एक ही आंसर होता है, दैट इज 2 and 4। मूविंग ऑन टू दिस, अगेन 6th इनकरेक्ट अगर इसको मानूंगा। पहला देखो तो बहुत कॉमन है, कैलकुलेटेड बाय द कंपेयरिंग प्राइस ऑफ द सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पीपी का दिस इज बेसिक डेफिनेशन। सो मैंने ये कहा, ये रूल्स आपको बेसिक लॉजिक, आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए, यू शुड हैव योर लाइक नॉलेज बेस रेडी एंड यू शुड हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैटिक पोर्शन। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अगेन इसमें भी जो 5 आया इसको इनकरेक्ट मानो, ऑलरेडी मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ। PSLV हो गया, यूजफुल फॉर दिस एंड दैट, ओके। अपीयर टू रिमेन परमानेंटली फिक्स इन द सेम, ओके। अगेन दिस इज 4 स्टेजेस। सो ऐसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 ऐसे लिखे
अगर इसमें इसको इनकरेक्ट मानता हूँ, मेरे पास ऑप्शन ए 1 एंड 2 बचते हैं, लेकिन अगर 2 को भी देखोगे, appear to remain permanently fixed in the same position in the sky as viewed from the permanent. Now अगर आप ये देखोगे कि परमानेंटली फिक्स कौन होता है, जो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स होते हैं, और PSLV is not known to launch GSLV satellites. This is basic. Again, you have to use your knowledge. Option A is correct. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में अगर आप देखोगे 12 मेंबर बॉडी, अगेन दिस इज इनकरेक्ट. अगर दूसरे को मैं इनकरेक्ट मानता हूँ, सॉरी, सो अगेन इस फंक्शन द चेयरमैनशिप ऑफ, अगेन दिस इज ऑल्सो ट्विकेबल पोजीशन, सो आई वुड से ऑप्शन ए इज करेक्ट. इसको गलत कर सकता है ना, ट्विक कर सकता है. चेयरमैन अंडर डिप्टी गवर्नर हो गया, डिप्टी अंडर गवर्नर हो गया, कुछ भी कर सकता है, अंडर होम मिनिस्टर, अंडर प्राइम मिनिस्टर, कुछ भी लिख सकता है. सो यूपीएससी ऐसे जो आपके पोजीशंस होते हैं ना किसी स्टेटमेंट में, उनको ट्विक करता है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. Again, this is 25 years data. This is incorrect. अगर इसको मैं incorrect मानूं, and this panchayat reconstituted after premature dissolution continues only for a remaining period. Remainder period. So देखोगे यहाँ पे ना ये सारे जो 25 years हो गए, ये सारे incorrect होते हैं. If any of the options of the answer is Vijayanagar Cholas, Asokas, WTO, ASEAN, EU, Andaman and Nicobar, M.K. Gandhi, so mostly वही option correct होते हैं. For example, जैसे यहाँ पे देखो Songs of Prison आया, M.K. Gandhi, चोला आया, अशोका आया, ये मोस्टली अगर आपके ऑप्शंस में वही ऑप्शन करेक्ट होंगे. बट अगेन मैंने कहा ये ट्रिक्स और हैक्स तभी आप अप्लाई करना जब आपके सारे नॉलेज और सारी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग वो एग्जॉस्ट हो जाए. फर्स्ट यूज योर नॉलेज. अगेन ट्रस्ट योर नॉलेज बेस. फॉर एग्जाम्पल विट्ठल विध्वंसक was first monthly journal to have the untouchable people as its target audience was published by. Now देखो, हम ज्योतिबा फुले के बारे में पढ़ते हैं, M.K. गांधी के बारे में पढ़ते हैं, भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ते हैं. सो अगर इनके बारे में हमने पढ़ा, इतना पढ़ा है बेसिकली, अगर इन्होंने कुछ जनरल लिखे होंगे बेसिकली या कुछ मैगजीन लिखे होंगे तो ऑब्वियसली हमारे दिमाग में होगा. बट हमको क्योंकि हमें इसके बारे में कभी नहीं सुना कि विट्ठल विध्वंसक इन तीनों के कभी पढ़ने में या किसी टॉपिक में आया हो. सो मैंने ये मानते हुए जब मैं ये अटेम्प्ट कर रहा था, आई हैड मार्क्ड ए, क्योंकि मैंने अपने नॉलेज बेस पे ट्रस्ट किया. मैंने कहा कि अगर इन तीनों के बारे में मैंने पढ़ा हुआ है, सो समवेयर आई कुड हैव सीन, बट सिंस आई डू नॉट नो दिस मैगजीन, सो ये कोई और ही होगा जो इसको लिखा होगा, समवन अननोन. 12वां क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, ये देखो, ये सबसे आपको लास्ट में अप्लाई करना है. सारे रूल्स अगर आपको फेल हो जाए तो आपको अप्लाई करना है. जैसे लेट्स से अगर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 4 स्टेटमेंट्स होते हैं, 4 होते हैं, तो उस केस में क्या होता है ना, 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स द आंसर इज ऑप्शन ए और डी. जैसे आप इसमें देखो, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन. तो अगर आपको ए एंड डी में आपको चूज करना पड़ेगा, 50-50 चांसेस हैं आपके. देखो, दिस इज वेरी कॉमन फॉर यूपीएससी. अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछता है तो इसमें इधर आंसर ए होता है या डी होता है, कहीं भी आप देख लो, ए डी, ए डी, ए डी, ए डी, समथिंग लाइक दैट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ये पॉलिटी के बारे में. लेट्स से इफ इन क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी, स्टेटमेंट कंटेनिंग एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस, से मोस्टली क्या होते हैं, इनकरेक्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, सो मोस्टली इनकरेक्ट होते हैं. अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. हियर ऑल्सो दिस 5 years, अगेन इफ आई सी इनकरेक्ट. देखिए, इसमें सारे रूल्स लग रहे हैं. साइंस एक्सट्रैक्शन में क्या होता है कि अगर स्टेटमेंट को आपका होता है यूनिवर्सली, अगर दिया है कि यूनिवर्सली इन्वायरमेंटली सेफ है, तो उसको आपको सस्पेक्ट करना है. राइट, इट माइट बी रॉन्ग. वर्ड्स लाइक हार्मलेस, बायोडिग्रेडेबल हो, कम्प्लीटली सेफ हो, नो टॉक्सिसिटी हो, ये मोस्टली क्या होता है, फ्रीक्वेंट ट्रैप्स होते हैं यूपीएससी के. अगर इसमें देखोगे, इसमें बोला कार्बन नैनोट्यूब्स आर बायोडिग्रेडेबल, दिस इज ऑल्सो अ ट्रैप. नाउ इफ आई एलिमिनेट दिस 4 आउट इज ऑप्शन ए. 59 क्वेश्चन में अगर बात करेंगे, नो नोन सेफ लेवल्स ऑफ मर्करी, दिस इज हाईली अनलाइकली कि कोई सेफ लेवल नहीं होगा नोन. तो अगर मैं इसको इनकरेक्ट मानता हूँ, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स कॉज मर्करी पॉल्यूशन, ऑब्वियसली क्योंकि कोल के साथ ना बहुत सारे इम्प्यूरिटीज आते हैं, हम इनको माइन करते हैं ना, इनके साथ बहुत सारे इम्प्यूरिटीज आते हैं, तो मर्करी भी होता है उसमें. एंड गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी सोर्स ऑफ मर्करी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. माइनिंग, लेट्स से माइनिंग में आप माइनिंग करते हो किसी भी मेटल का,
किसी भी एलिमेंट का, तो उसके साथ बहुत सारे इम्प्यूरिटीज आते हैं, और इम्प्यूरिटीज में मर्करी कुड बी द वन ऑफ द इम्प्यूरिटीज। तो अगर इसके अगर उसको कंसिडर करूँ तो मैं ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। So that's all for today, and we'd like to continue this series. Stay with us till your prelims, and all the best for your prelims 2026 that's going to be happening on Sunday. Thank you all.